Jai Shri Ram, Jai Shri Krishna, Jai Hanuman. So we are in Uttarkand, and Uttarkand is the Kand of all answers. And Shri Ramcharitra or any scripture for that matter, gives us a gist of the entire Ved. So Ramcharitra and Mahabharat and many of our Purans, कहानी के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से ये सब समझाया जाता है. So many a times we just look at the stories and leave it, right? But then the purpose is half done, right? So last week, because we did not want to interrupt in between the story, we focused only on the story and just touched upon the Gyan. Today we'll go back, है ना? It might be a little boring, but we have to do it. नहीं तो the purpose won't be served. तो हम अब वापस पीछे जाएंगे. We will go back to verses Doha number 94 A and B, and we'll gradually move towards Doha number 112 A and B. But this time, yes, we will refer to the story, but our main purpose will be to understand the deeper teachings. When we started the story, कलयुग की चर्चा आती है ना? Because he says, काकभसुंडी जी says कि मैं कलयुग में था जब मेरा मनुष्य शरीर था, and उस समय में अयोध्या में रहता था. And when did he start giving the discourse, or he introduced himself? When Garud ji asked, how then you possess this Kag Sharir, the body of a crow? Second question, 8 miles. Within the minute I entered 8 miles of your vicinity, all my ego, Brahm, disappeared. Fourth, why do you not change your form? Why don't you just merge into the Lord? है ना? जब आप कर सकते हो, इतने ज्ञानी हो तो आप कुछ भी कर सकते हो. तो can you please explain these 3 things to me? And that is when he started talking about his past, right? Previous births, how he was born as a python, then he took births in various species. हम सब योनियों में भटकते हैं, species after species, 84,000 लाख species में बदल भटक के एक मनुष्य जीवन मिलता है हमें. इसी कहते हैं ना कि नर तन बहुत दुर्लभ होता है, उसको गंवाना नहीं चाहिए. किंतु बहुत मुश्किल है, कठिन है, पर बहुत कम लोग मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर पाते हैं, बाकी दुरुपयोग ही करते हैं. See, eat, drink and be merry, everybody does. Even the animals do. Many animals, few animals have the intellect. We cannot say they don't. क्योंकि अब काकभसुंडी थे, वो कौवे थे, गरुड़ थे, एंड ऐसी चर्चाएं बहुत आती है हमारे इतिहास में, where even in any other form or species, even as a पेड़, the awareness remains. जब कृष्ण भगवान की वो लीला हम सुनते हैं ना, जहाँ पे उनकी माँ उनको बांध देती है, एंड तब वो जब घसीटते हुए उस ओखल को, he goes in front, he keeps moving, तो जो 2 वृक्ष होते हैं ना, उनको वो तोड़ देते हैं, और उन वृक्षों में से 2 एकदम तेजस्वी पुरुष निकलते हैं, राइट? They were also in awareness. So, yes, there could be other species who are in awareness, but मनुष्य जीवन में ये विवेक ज्यादा होता है, होना चाहिए. कलयुग में we prove ourselves otherwise, but ऐसा ग्रंथ कहते हैं. So, मनुष्य जीवन जब मिला है तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रभु की भक्ति एंड इस भव सागर को पार करना चाहिए. We have to be devoted to the Lord, and we have to have the willingness to cross the ocean of mundane existence, break the shackles of life and death. आज बहुत अच्छा जीवन है, तो हमें लग रहा है क्यों अच्छा ही तो जीवन है, आराम से जिए. Next, if we are born as a dog, in the filth as a pig, or in the झोपड़ीज where we don't even get food, कोई गारंटी है क्या? जितना हम आज होड़ करते हैं ना, उतना ही कल हमारे से चला जाता है. सो काकभसुंडी से जब पूछा गया, right, genuinely when he wanted to know, Garud ji,
he started talking about himself, and this is the greatest sign of a divine soul. वो खुद का बखान नहीं करते हैं. कहते हैं ना, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा ना बोले बोल, हीरा चलकर ना कहे कि लाख हमारा मोल. एंड जो खुद की बड़ाई करने लग जाए ना, वो हीरा नहीं होता. There'll be so, that is, and we should put that in practice, irrespective of what the situation. खुद का बखान ना करे. I actually had a friend. So once, I have a friend, I should say. Once we were standing together, and there was this, the third person who was talking to both of us was throwing around his weight, आराम से. हम दोनों सुन रहे थे, बात करे जा रहा था about his experience, about his qualification, about this, about that. We both kept listening, है ना? And after the entire conversation, I turned to my friend and I asked, why were you quiet? Why didn't you talk about yourself? And the question was, see, ज्ञान हमें कहीं से भी मिल जाता है. जरूरी नहीं है कि white robe या yellow robe or sitting with a scripture only are knowledgeable. नहीं. There are people who are old souls and पता पड़ता है. And I asked, and the answer was very simple. उससे क्या फर्क पड़ता? And बोला, still, didn't you want? बोला, no, I did not want. How does it matter? Why should I interfere? Why should that person know? Let him feel good about himself. And you know who was this person who remained quiet? Was a person who is an IIT, IIM, Stanford pass out with excellent track record in a job. Yet, when the person in front was talking and glorifying himself, he chose to remain quiet. कहते हैं ना, बड़ा बड़ाई ना करें, and that is what comes. With education should come humility. Ultimately, how does it matter? Let somebody else feel good about themselves. क्या फर्क पड़ता है? So काक भसुंडी से जब तक पूछा नहीं गया गरुड़ से, उनने मुंह नहीं खोला. He never talked about his journey. He never talked about his accomplishments. He never talked about anything which he had experienced. It was not needed. And over here also, when he was sharing, it was because Garudji genuinely wanted to know. Otherwise, he was quiet. Because see, ultimately, it is not about the person who is narrating. It is always about God. चाहे वो कोई भी संस्था हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, the organization or the person should never become bigger than God. They should always be in the shadow. And जो ग्रंथ है और प्रभु है, वो ही प्रकाशित होने चाहिए. और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो बहुत गलती हो रही है. काक भुसुंडी ने कभी अपने आप को प्रकाशित करने की कोशिश नहीं की. उनके लिए राम, मेरे राम was the most important thing, कि लोग बस मेरे राम को जाने. Right? So this journey is very beautiful. जिस पेड़ पे बहुत सारे सेब एप्पल्स लग जाते, वो झुक जाता है. Right? नम्रता, humility, down to earth nature, सरलता is the पहचान of ज्ञान. And कहते हैं ना, see, many a times nowadays we have started looking at scripture as another subject. I'm sorry, I'm digressing, but आप सोचिए, काक भसुंडी भी अभी बहुत क्लियरली बोलेंगे. It is not another subject. ये समझा नहीं जा सकता, इसकी अनुभूति होती है. ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ता, भक्ति बढ़नी चाहिए. ग्रंथ पढ़ने से ज्ञानी नहीं बनना है. हमें क्या बनना है? भक्त बनना है. आचरण में आना चाहिए. It is not like, oh, I know everything about this, I know. It becomes another subject. It is not a subject. It is not physics, chemistry, biology. It is not psychology. ये scriptures हैं. ये अनमोल हैं. इनका कोई मोल नहीं है.
एंड एक ही इनका उद्देश्य है, डिवोशन, भक्ति एंड समर्पण. अगर वो नहीं हो रहा तो कहते हैं ना, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मपते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुखिन करने. तुम गोविंद को भजो. ये रट्टा पिट्टी, ग्रामर रूल्स, यस वेरी गुड, दे आर नॉट द एंड ऑब्जेक्टिव. उससे कुछ नहीं होगा, उससे थोड़ी मोक्ष मिलेगा. राइट? सो काक भसुंडी भी हरि को भजते थे. सो व्हेन दीज क्वेश्चंस वर आस्क्ड, he started talking, right? So when he started talking, because our scriptures follow that, when he was narrating a story, he covered a lot of topics. उनने कलयुग के बारे में बात की, है ना? We can make a note if we want to, because there are going to be diverse topics which you are going to touch upon. कलयुग में क्या होता है, he talked about that. What is devotion, he talked about that. What is Treta, Satyug and Dwapar, he talked about that. He talked about how not only does during Satyug all the sattvic tendencies reside in us, at any point in time Sattva, Rajas and Tamas are there in us, and the level can be varied based on the composition of our mind, intellect. शुद्धता के बेसिस पे हम उसको कलयुग में भी आगे पीछे कर सकते हैं. He went on and talked about knowledge. He talked about the importance of a guru. He went on to talk about साकार and निराकार भक्ति. सोचिए, इतनी सी कहानी में क्या क्या नहीं उतार लिया. Right? So we'll make an effort to briefly touch everything. Right? So हम शुरू करेंगे the definition of Kalyug se. Right? I'll go a little slow, but we'll try to finish everything today. So the first thing he says is कि आप सुनिए, when Garud asked genuinely to know, he started talking, and over here it was not to glorify himself. He just wanted to talk about the journey. Dear Garud, listen to it attentively. अपन 3 प्रश्न पूछे. अब प्रश्न पूछ के कई बार क्या होता है ना, हम सुनते नहीं है. That is our normal tendency. We listen to answer, we don't listen to internalize. Right? हम पूछ तो लेते हैं पर हम सुनते नहीं हैं. Right? And we always have a preconceived answer in our mind कि ये मेरा प्रश्न है तो इसका उत्तर ये होना चाहिए. Open minded questioning हम नहीं करते. Right? The answer could agree to what I believe in, and the answer could disagree with my belief system. I should be willing to accept it and at least give it a thought. Right? तो ये क्या बोल रहे हैं? Listen to it attentively with reverence. देखिए, जब हम प्रभु का नाम सुनते हैं ना, we should be very attentive. एकाग्रचित होके हमें सुनना चाहिए. And with reverence. Reverence क्या होता है? Humbleness, devotion, बहुत भक्ति भाव के साथ में. Right? Not with wit and cunningness. ये कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसका हम तोड़ निकाल सकेंगे. इसका कोई अंत नहीं है. इसको समझना असंभव है. These are just indications. This is not the whole subject. Without reverence, क्या करेंगे हम? Right? So he's saying, listen to it attentively with all reverence. And what is the most important thing that we have to understand here? Jap, tap, mak, sam, dam, vrat, dana. है ना? विरति विवेक जोग विज्ञाना सब कर फल रघुपति पद प्रेमा तेहि बिनु को न पाए क्षेमा. What is the meaning of this? इतनी सारी चीजें जो हम करते हैं ना, the muttering of prayers, austerities, penance, performing sacrifices, subjugation of the mind, हम अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, कितनी करते हैं, पर ये कंट्रोल में नहीं आता है. कंट्रोल करने वाली चीज ही नहीं है. Right? Subjugation of the mind and senses, undertaking sacred vows, charity, dispassion, right judgment, union with God and realization. These are not the end results. These are not the fruits. These are means to the fruit. And what is the fruit? Realization भी नहीं है fruit.
The fruit of all these is devotion to the feet of Shri Ram. भक्ति, ये जप तप नियम, ये सब एक मीन्स है. दे आर लाइक वी आर वॉकिंग ऑन अ पाथ टू व्हाट? डिवोशन. भक्ति अंत में आती है, भक्ति शुरुआत नहीं होती. हमें लगता है ना कि वी आर डिवोटीज. नहीं, हमने पढ़ा था राइट, जब माँ पार्वती आस्क्ड शिव जी कि ये कौवा कैसे भक्त हो गया, राइट? And then the entire story was told. There was a beautiful paragraph. I'll share it again to refresh our mind later. I'll put it on the group. But bhakti is the end result. हमें लगता है ना क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा. सब कुछ वैसे का वैसा होगा. जो भी हम कर रहे हैं सब कुछ, सारा सब is to develop that unswaying, unending devotion in our heart towards the Lord. बहुत मुश्किल है. पल भर की भक्ति आती है फिर चली जाती है. मात्र क्षणिक भक्ति, व्यवसायिक भक्ति होती है. यू नो व्हाट इज व्यवसायिक भक्ति? पार्टर सिस्टम. भक्ति बहुत है ना. प्रभु तो बस मेरा ये काम करा दे. व्यवसाय, हमने प्रभु के साथ में भक्ति को भी एक व्यवसाय बना दिया है कि बहुत डिवोशन है, मैं तो रोज जाता हूं. क्यों? ताकि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए. ठीक है, बट अल्टीमेटली मनोकामनाओं के लिए पूजा नहीं होती. भगवान की प्रार्थना भगवान के लिए होती है, भगवान से लेने के लिए नहीं होती. जब ये बात समझ आ जाएगी ना, तो मेरे ख्याल से हमें ग्रंथों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. सॉरी, राइट? सो नाउ विदाउट दिस नो वन कैन अटेन लास्टिंग पीस. हम बोलते हैं ना, हमें शांति चाहिए. क्या चाहिए? शांति चाहिए. आई वॉन्ट पीस. The entire quest is for happiness and peace, and we are happiness and peace, and no matter what we get in our lives, the unending cycle of want is going to continue. Peace नहीं आएगा, joy नहीं आएगी. क्यों? वो कैसे आती है? The realization that ठाकुर जी ही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है. उन्हीं के हाथ में सब कुछ है. I am just the puppet. जब तक ये समर्पण नहीं आएगा ना, there will not be peace and happiness. Cannot be peace and happiness. Because हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, हम भटकते रहेंगे. So he is saying, when he talks to Garud, बोले listen attentively with reverence. जो कुछ भी हम सब कर रहे हैं, it is only to develop devotion to the feet of Shri Ram. Without this, no one can attain lasting peace. And he says कि इस शरीर में मुझे भक्ति मिली. राइट? ये तो हमने कवर करा था लास्ट टाइम. तो मैं ये शरीर क्यों छोड़ूं? जिस शरीर में, जिस जगह आपको प्रभु से प्रीत हो जाए, जो इंसान आपको प्रभु के तरफ मोड़ दे, in that place, person, thing, we should be indebted for life. क्योंकि वो जो स्पार्क हम सब में है, उसको इग्नाइट कर दिया. जैसे वो मैं इसी के लिए मैं नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि उद्देश्य क्या है मनुष्य जीवन का? प्रभु भक्ति, प्रभु प्राप्ति. वो मुझे इसी में हो गई, तो मुझे नहीं छोड़ना. राइट? वेरी सिंपली ही सेइंग. एंड ही सेइंग कि देखो, वेद भी यही कहते हैं. एनीथिंग, कई बार होता है ना, द वर्स्ट ऑफ सिचुएशन इन्वोक द डीपेस्ट ऑफ डिवोशन, देन दैट सिचुएशन इज वेरी गुड. द वर्स्ट ऑफ पीपल, कोई हमें दिन रात तंग करता है ना, इतने परेशान हो जाते हैं कि हम प्रभु से बोलते भगवान बचा ले. दैट पर्सन इज द बेस्ट ऑफ पर्सन. एनी हॉरेबल पर्सन ऑल्सो, इफ ही इज फोर्सिंग यू टू थिंक अबाउट गॉड एंड टर्न टूवर्ड्स गॉड एंड टॉक टू गॉड, ही इज लाइक अ टीचर. उसने आपका डायरेक्शन सेट कर दिया. सो दे आर सेइंग, इवन आवर वेद से, अ फाउल पर्सन, अ हॉरेबल सिचुएशन, if it ignites devotion, it is the best. And the most perfect of a person and the most amazing of situations, if they take us away from God, they are the worst. नाप तोल ऐसा नहीं होता कि सुख कितना है, संपत्ति कितनी है. अगर सुख और संपत्ति और दूसरों का प्रेम हमें प्रभु से दूर ले जाता है, तो वैसा प्रेम, सुख, संपत्ति नहीं चाहिए. भूखा पेट अच्छा है अगर दिन रात प्रभु भक्ति जगाता हो तो.
कुंती ने भी यही मांगा था, एंड कुंती वाज लाइक वेरी क्लियर. शी सेड लिसन, गिव मी टेरिबल सिचुएशन श्री कृष्ण. बोला बुआ आप ये क्या मांग रहे हो? लोग तो सुख संपत्ति अच्छी सिचुएशन मांगते हैं, आप ये क्यों मांग रही हो? बोले देख बेटा मैं दुख नहीं मांग रही हूं, क्योंकि दुखी होना ना होना तो मेरे हाथ में है. पर जब आपत्ति आती रहेगी ना, when the situations are not in our favor, we tend to think about you more. So I'd rather have situations which are terrible, surrounded by people who are terrible. जब एक अकेलापन लगने लगता है ना, तो इंसान कहीं नहीं प्रभु के पास ही जाता है. तो rather have those so that I'm always looking towards you. कठिन है, आसान नहीं है. अपने को डर लगता है ना, कल को सुन लेगा तो, कर देगा तो, कोई बात नहीं. So now he's saying, so this is what he's saying about here, very short में, कि devotion is the ultimate aim. Then he goes on to talk about कलयुग. And कलयुग हमारे आसपास है, हम सब जानते हैं कलयुग में क्या हो रहा है. Last time we refrained about talking about कलयुग, but let's take up a few points. And कलयुग कैसे शुरू हुआ था? श्रीमद् भागवत महापुराण में the entire story of how कलयुग started when Treta Yuga was ending, Dwapar was ending, has come, and it started, and the story starts when Raja Parikshit sees a bull and a cow, and it goes back. Narad Muni sees a cow crying, right? And the entire story about Vairagya and Vivek is also there, but we will start with the story of a cow and a bull. So jab Raja Parikshit was roaming around, what did he see? That a cow is weeping. Cow is Mother Earth, right? She is a representation. Cow is weeping, and there is this evil looking person who is hurting the bull. Ye bull is Dharma, right? Bull is the representation of Dharma in Srimad Bhagavad Mahapuran in this story. And वो मार रहा है, और that bull is standing on only one leg, है ना? And the earth is crying. अब सोचिए, जब हमारे बच्चे गलत करते हैं, right? When our children do not act nobly, when somebody says that your child has done something which is evil, the heart of a mother hurts, right? Now Mother Earth is a witness to everything that is happening. उनको तो सब दिखता है, सब कुछ उन्हीं के सामने हो रहा होता है. वो कितना रोती होगी माँ कि ये यही मेरे बच्चे हैं, यही सिखाया मैंने, यही कर रहे हैं लोग. Look at the agony that Mother Earth goes through. So the cow is crying and the bull is being tortured, and उसके 3 पैर कट चुके हैं. And what are the 4 legs? धर्म के 4 पैर क्या होते हैं? धर्म के 4 पैर होते हैं, and we have done this many a times. धर्म के जो 4 पैर होते हैं वो है purity, right? One is purity, austerities, tapas, शौच and kindness, जहाँ पे हम दान पुण्य कंपैशन दिखाते हैं, एंड ऑनेस्टी, सत्य, राइट? ये है धर्म के 4 पैर. इसमें से कलयुग में द 3 legs which have already been cut are austerities. हमसे तपस्या नहीं होती. आज we look down on Hiranyakashipu, we look down on Ravan, we look down on many of those demons, हिरण्याक्ष. पर जिस तरह से ये तपस्या कर लेते थे, क्या हम कर सकते हैं? हजारों सालों की तपस्या की थी विश्वामित्र जी ने, नहीं होती. सो वो एक पैर कट चुका है. प्योरिटी, शौच, क्या प्योरिटी है इनसाइड आउटसाइड ऑल अराउंड? नहीं है. वो पैर भी कट चुका है. विभीषण गीता में वी हैव टेकन प्योरिटी in great detail. We have taken all these in great detail. And then kindness. See, kindness is not just, feeling good. मतलब compassion is very essential जब हम कुछ करते हैं. हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, हम बहुत कुछ नहीं कर पाते. We feel we are kind, we are not. I'll give an extreme example which might repulsive you, but जब संसार में इतने भूखे हैं और हम घूम फिर सकते हैं, जरूरत से ज्यादा पैन ओढ़ सकते हैं, अपने आप पे खर्च कर सकते हैं, तो हम काइंड नहीं है जी, राइट? जो थोड़ा बहुत हम करते हैं वो ब्राउनी पॉइंट है. चलो अपनी गिल्ट बचाने के लिए. काइंडनेस का पैर कट चुका नहीं है ना? सो वी कैन नॉट क्लेम दैट वी आर काइंड. नो, वी आर नॉट, राइट? इन दिस डेफिनेशन वी आर नॉट, राइट? एंड व्हाट इज रिमेनिंग इज ट्रुथफुलनेस, एंड दैट इज ऑल्सो वॉबलिंग. एक पैर पे वो बुल खड़ा है, एंड द लेग इज ऑल्सो वॉबलिंग. क्योंकि ट्रुथनेस भी
ट्रूथफुलनेस भी वी विल होल्ड बेस्ड ऑन आर बेनिफिट. सच बोलने में फायदा है तो सच बोल देते हैं, नहीं है तो नहीं बोलते हैं, आधा सच बोल देते हैं. दैट इज ऑल्सो वॉबलिंग. तो दैट इज द पहचान ऑफ कलयुग. And then when Raja Parikshit said, what are you doing? He started and he wanted to kill Kali. He said, you cannot kill me. क्योंकि it's rightfully my time. सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, अब ये मेरा समय है. आप मुझे मार नहीं सकते, आप मुझे भगा नहीं सकते, आपको मुझे रहने के स्थान देने पड़ेंगे. So Raja Parikshit said, okay, if that is the case, I'll give you 5 places. You know the places, 5 स्थान जहां कली रहता है. Gambling, satta. And I'm not going to talk in great depth about it, but हमें सबको पता है क्या क्या गैम्बलिंग की डेफिनेशन में आ जाता है. Just because it is accepted, speculation and making money on speculation is not right. Just because everybody is doing it, it is not right. Right? Gambling. वही होता है ना, गैम्बलिंग क्या होती है? If you expand the meaning, it is not only going to Las Vegas and the casinos and playing. Gambling हम बहुत करते हैं and it is accepted form. बहुत सारी firms करती हैं आजकल, right? And George Soros जैसे लोग तो they make economies go haywire. हमने देखा था ना 1999 में what one person could do. बोला मैं gambling में रहूंगा. Drinking. Alcohol, right? It is, see, I cannot change anything or I cannot say नहीं कभी कभी पीना ठीक है या लिमिट में पीना ठीक है या सोशल गैदरिंग्स में पीना ठीक है या फिर कॉर्पोरेट इवेंट्स नहीं हो सकते if you don't drink. That is all, it's a personal choice, but that is not true, right? So over here our scriptures consider any kind of intoxication. ऐसे ही हमारे में विवेक नहीं है, पी के और विवेक खत्म कर लो, है ना. He says drinking, then lust. Lust is calm. Extreme lust is calm. Physical lust plus extreme desire भी आप गिन लीजिए उसमें. अति सर्वत्र वर्जते. काम भाव जो होता है, it's not good. इसी के लिए many a times it is like जैसे खाओगे वैसा आपका मन हो जाएगा. भले ही घर में खिचड़ी बना के खा लो, पर मंत्र जाप करते हुए खुद बनाओ और खा लो. आपको क्या पता जो आपके यहाँ पे आया है बनाने, उसके मन में क्या चल रहा है, राइट? जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसी बोलोगे जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी. सो अगेन दे आर सेइंग लस्ट एंड पैशन गेट्स इग्नाइटेड. वी आर जस्ट, हमारी बाकी अन्न तो हमारा बैटरी है ना. जिस तरह का फ्यूल डालेंगे, जो भी हम अंदर डालेंगे वही तो हमारे बाहर आएगा. कहते हैं ना, सुबह नहा धो के प्रभु की प्रार्थना करके भोग बनाओ, खाना मत बनाओ. और वही खाओ जो आप भोग लगा सकते हो. भोग लगाकर ही खाओ, शुद्ध मन से बनाओ. वी आर सो एजिटेटेड, वी रश, वी कुक, वी आर एंग्री, वी पास ऑन द एंटायर थिंग टू आवर फैमिली. फिर लगता है कि अरे why are they also agitated? I'm doing so much. What was your manostiti? Right? So that is where, so where is it? Gambling, drinking, lust, cruelty. Cruelty of any form. ऐसा नहीं कि मैंने किसी का मर्डर थोड़ी करा है. अगर अपने शब्दों से भी किसी का कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दिया तो क्रूअल्टी है. मत बोलो अगर कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं हो तो. Don't be cruel. Many a times, you know, we end up saying something and then लगता है क्यों बोला. क्या पता जो इंसान आया उसकी मनस्थिति क्या थी. For all you know, you have killed his confidence for the rest of his life. Cruelty in words, cruelty in thoughts. The negative vibrations we can pass towards somebody else. सब सूक्ष्म है ना. ऐसा थोड़ी है कि जो हम मारे तो ही क्रूअल्टी होता है, बोले तो ही क्रूअल्टी होता है. सोच के भी we can destroy somebody else. नजर कहते हैं ना कितनी खराब होती है. कोई कितना ही दूर बैठा हो, and if that person really thinks strongly negatively about you, आपको हो जाता है. हम मानते हैं, काफी लोग मानते हैं नजर में. तो तब क्या होता है? So cruelty of any form. And then रजोगुण. रजोगुण क्या है? रजोगुण is not only gold. Having more than I need is रजोगुण. ठाट बाट,
बोले व्हाट्स सो रॉन्ग? जैसे कई बार बोलते हैं ना, नहीं यार अगर ज्यादा कमा लिया, ये कुछ कर लिया ना, दान करेंगे। बोले ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। क्या है? जब जाते हैं ना आप, यू नो, एज नाउ वी आर ऑल इन दैट एज कि एक के बाद एक के बाद एक हम आजू बाजू बड़ों को जाते हुए देख रहे हैं, यू नो। एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन इंडिया, व्हेन यू आर देयर वेयर अ लॉट ऑफ फैमिली इज देयर, एवरी मंथ शमशान के दर्शन होते हैं। इट्स अ रिमाइंडर, कहते हैं ना कि क्या ले जाएंगे साथ में, जो पहना होगा वो भी निकल जाएगा। Why? All that we are gathering today is going to become a burden to our children कि क्या इकट्ठा करके चली गई, अब इसको निकालो। और I have seen cupboards emptied and thrown, and they were precious possessions to somebody, right? कि यार खाली करो, जो सामने मिले उसको दे दो। रजोगुण, गोल्ड, excessive hoarding, excessive possessions. एक तो तामसिक टेंडेंसीज वी कंसिडर रॉन्ग बिकॉज वी वांट टू हार्म समबडी एल्स। राजसिक टेंडेंसीज वी डू नॉट कंसिडर रॉन्ग बिकॉज वी से हम तो अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हैं ना, वी आर नॉट हार्मिंग एनीबडी एल्स। पर रजोगुण जब हम लोग, व्हेन वी आर इम्प्लीमेंटिंग रजोगुण इन आवर लाइफ्स एंड जस्टिफाइंग इट, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठाकुर जी ने उतना ही दिया है, जरूरत से ज्यादा आप ले रहे हो तो आप किसी से छीन रहे हो। There is no explanation to it. आपके पास में जरूरत से ज्यादा है तो आपने किसी का लिया है। मतलब I do not know how true it is, but I was reading about Sudha Murthy, and we know Narayan Murthy, Sudha Murthy, Infosys, कमी नहीं है। उन्होंने बोला मेरे को इतने साल हो गए, मैंने कपड़ा नहीं खरीदा है, मेरे पास में इतना है, मेरी जिंदगी भर चल जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। एक कपड़ा नहीं खरीदा है। जब भी आप उनको देखो ना, लकीली व्हेन वी आर हियर, यू सी हर कमिंग, शील कम टू गिव अ टॉक व्हेन द एथलीट्स आर देयर, शील कम एट टू द लिटरेचर फेस्ट, एंड सिंपल सी आती है, अपनी साड़ी पहन ली, छोटा सा वो मोगरे के फूल हैं, आ गई, बोल के चली गई। क्या कमी है उनके पास में? पर शी रियलाइज आई डोंट नीड एनीथिंग एनी मोर। उनने कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। अंत नहीं है इस चीज का। And nowadays, yes, yesterday I was reading, do you know, all these big brands, so that nobody else can have their product, they destroy it. Now, in the European Union, they have come with a law that no brand is allowed to destroy their production. फ्री में देना है दो, सेल करना है करो, तुम डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो लिमिटेड रिसोर्सेज? देयर इज अ प्लेस, वहां लोगों के पास में कपड़े नहीं है, हमारे को समझ नहीं आ रहा है कि अलमारी में स्पेस कैसे बनाए, हमारे पास में इतने कपड़े हैं। सोचिए तो सही। सो रजोगुण सब कुछ कवर करता है। वी से कि नो गोल्ड दिस दैट, नहीं, एनीथिंग, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इफ यू हैव मोर देन यू शुड हैव, यू आर टेकिंग इट अवे फ्रॉम समबडी एल्स, राइट? तो ये बोल रहे हैं कि दिस इज कलयुग की पहचान, एंड दिस इज वेयर कली स्टेज। जहां पे ये 5 चीजें हो रही हैं वहां पे कली है, राइट? एंड देन ही टॉक्स अबाउट सच ग्रूसम थिंग्स दैट वी आर सीइंग राइट नाउ। We'll just read a bit. He says कि every virtue has been taken away by Kalyug. ठीक है? All good books have disappeared. है ना? Imposters. मतलब कौन है सही, कौन है गलत, कौन है ढोंगी, सब खत्म हो गया है, पता ही नहीं चलता है, right? The people have fallen prey to delusion. All pious acts have been swallowed by greed. लालच, किसी भी चीज का लालच हो सकता है ना। जहां लालच होता है ना, वहां पायसनेस, काइंडनेस कुछ नहीं रह सकती, राइट? एंड देन ही सेज नो वन फॉलोज द ड्यूटी। 4 जो आश्रम है वो कोई फॉलो नहीं करेगा, गृहस्थ आश्रम के आगे तो जाएगा ही नहीं, और ब्रह्मचारी आश्रम के जो नियम होते वो तो होगा ही नहीं। होता है ना, वी नाउअडेज एज पेरेंट्स व्हाट डू वी डू, कि जो हमें नहीं मिला वो सब हमारे बच्चे को मिलना चाहिए। ये नहीं बोलते कि तुम्हारा आधा जीवन तो यूनिफॉर्म में निकलता है, उसके बाद में तुम जो स्पोर्ट्स खेलने जाते हो वो कपड़े पहनते हो, तो तुम्हें 2-3 जोड़ी कपड़ों से ज्यादा की जरूरत क्यों है?
एंड देन उसके बाद में वो छोटे होते रहते हैं एंड दे हैव कबर्ड फुल ऑफ क्लोथ्स. मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम के नियम तो हम बच्चों को फॉलो ही नहीं करने देते. गृहस्थ आश्रम के नियम हम फॉलो नहीं करते हैं. और उसके बाद में वानप्रस्थ की तरफ तो कोई जाता ही नहीं है आजकल. बच्चे नहीं तो फिर हम बच्चे बड़े हो गए, दे गेट बिजी, तो हमारा मुंह हमारे पोता पोती की तरफ. वी कीप इंटरफियरिंग इन देयर लाइव्स. वी आर ऑलवेज देयर. इट इज नॉट अबाउट चेंजिंग एंड लीविंग द हाउस. इट इज अबाउट हियर. वानप्रस्थ में प्रवेश करिए ना. संन्यास तो कोई पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि आजकल सन्यासी भी कलयुग में दे आर सेइंग इवन द सो कॉल्ड सन्यासीज आर होर्डर्स. एक घर छोड़ के बड़े आश्रम बना लिए. उनके रूम में देखो बड़े से बड़ी चीजें रखी हुई हैं. एंड यस, द जस्टिफिकेशन वी ऑल गिव इज क्या है ना, यू शुड, इट इज ओके टू ओन थिंग्स, द थिंग्स शुड नॉट ओन यू. वी प्ले वेरी वेल विथ वर्ड्स. इट इज ओके टू ओन थिंग्स बट द थिंग्स शुड नॉट ओन यू. वो तो मैं ही जानती हूँ ना कि मुझे ये घर ओन करता है या नहीं करता है. ऊपर से बोलने में क्या जाता है. लेके दिखाएं आप. एक बार आपका पेंडेंट घूम जाए, आप एक सेकंड यहाँ नहीं बैठोगे, पूरा हफ्ता ढूंढोगे, परेशान हो जाओगे मेरा पेंडेंट कहाँ चला गया, डायमंड का था. Who says that things don't own you, right? And he goes on, he describes the saints, he describes the spouses, he describes the wives and the husbands of today. He describes कि जो बाप की मर्यादा है वो बाप फॉलो नहीं करता है, भाई की मर्यादा भाई भूल जाता है, right? And we are seeing so much of it right now, right? When even the ocean forgets its own मर्यादा and tsunami happens, because समुंदर को तो अपनी मर्यादा में रहना चाहिए ना. समुद्र भी अपनी मर्यादा इसी के लिए भूल जाता है कि हम अपनी मर्यादा भूल जाते हैं. We forget where our boundaries are, where we stop. कुछ नहीं. There is no मर्यादा and there is no justification. People over here, he says ना, people will do whatever they want. So मैं तो मेरे मन की सुनता हूं. मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक. बोले ग्रंथों में जो लिखा है वो तो कोई करना ही नहीं चाहता. पीपल से ना कि अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, दीज आर ऑल आउटडेटेड. नो, दीज आर एवरग्रीन. दिस अ वे ऑफ लाइफ, दिस इज धर्म. बट नहीं, मेरे मन में जज के आना तो मैं कर लेता हूं. मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक. मन आपको कहां कहां दौड़ाएगा आपके समझ भी नहीं आएगा. देयर आर प्रिंसिपल्स लेड आउट. The do's and don'ts of human existence are listed. हम ना पढ़ना चाहें और हम ना जानना चाहें, ignorance is bliss, of course, but that does not make it right. We cannot just do anything. कभी भी उठे कभी भी सोए. हर चीज का एक समय होता है, हर चीज करने का एक तरीका होता है. But in Kalyug, nobody is going to follow it. They will create their own sects, they will create their own way of life, they will create their own right and wrong. एंड जस्टिफाइड. वेद किसको पता क्या लिखा उसमें, हमें पता है क्या, नहीं पता, राइट? वी आर ट्राइंग. सो ओवर हियर ही सेइंग पीपल ऑफ, एंड जिसका जो धर्म है, वी ऑल हैव बीन गिवन अ पोजिशन इन सोसाइटी, वी ऑल हैव बीन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट वी विल नॉट अपहोल्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुल्ली. वो भी हम नहीं करते, राइट? द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. आपको इधर रख दिया है तो डू द बेस्ट you can where you have been placed. Be it the ashram, be it the jat, be it anything, wherever, be it the work, whatever has been assigned to you, do it with utmost diligence. नहीं होता, हम नहीं कर पाते, right? So that is the nature of Kalyug. And they say कि men they've sinned so much, they reap suffering, terror, disease, sorrow, desolation, and overcome by delusion, they walk not on the path of devotion. They can't walk on the path of devotion, dispassion, or wisdom, or anything that is approved by the Veds. Right? And not only this, over here, in so many words, they have mentioned that the knower of the scriptures, the knower of the Veds, starts selling them. पता है हमारे इतिहास में, in our culture, education is never charged for. गुरु दक्षिणा होती है स्व इच्छा. ठीक है, स्कूल्स अब चार्ज करते हैं,
पर ग्रंथ पढ़ाने वाले भी चार्ज करने लग गए. तो इट्स मेंशन्ड ओवर हियर, द brahmanas are not by birth, they are by knowledge. The knowers of the Vedas are going to start selling the Vedas, बेचने लगेंगे. The kings bleed their subject. No one respects what is being mentioned by the Vedas. The right course for every individual is that which one takes to fancy. जो मुझे अच्छा लगता है मैं करूँगा ना. Who are you to stop me? Nobody, भाई. Nobody is nobody. तो इस देखिए ना, कलयुग, घोर कलयुग क्या होता है जब ग्रंथों को भी बेचा जा रहा होता है. ये अनमोल है, इसका कौन क्या मोल लगा सकता है, मुझे तो आप ये बता दीजिए. There are 100 ways to earn money. Why through scriptures? And this is a sign of Kalyug. This is a sign of Kalyug. And he goes on, and sometimes, when you read these things, you relate to it as to what is happening right now. Self-control, charity, compassion, and wisdom disappears, while stupidity and fraud multiply to a large extent. Men and women all pamper their bodies, while slanders are diffused all over the world. आत्मशुद्धि नहीं, शरीर, सब कुछ शरीर, right? Everything becomes so gross. We know it, right? ठीक है? Yes, this body is needed because without this sharir, we cannot reach the Lord. इसको स्वस्थ रखना है. बट आज क्या पहनेंगे, कल क्या पहनेंगे, ऐसे सजना है, वैसे बहुत सुंदर है. श्री कृष्ण भी सजते थे. Obsession? And where is the limit? It is defined by the Vedas, but our limits are our fancies. जब प्रभु ने दिया है तो खुद पे मैं क्यों ना खर्च करूं? करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस जन्म में बहुत दिया है और वो हिसाब लग रहा है, लिख रहा है. देयर इज, कहते हैं ना, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता. ये अकाउंटेंट है. मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता. मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता. भाई खाते भर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट, कहाँ क्या जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, एवरीथिंग वो दोनों हाथ से लिख रहा है. राइट? एंड देन इफ वी क्राई लेटर, नहीं, वी आर रीपिंग द बेनिफिट, और whatever we have done, as we sow, so shall we reap. So this is the definition of कलयुग. तो बोलते हैं घोर कलयुग था. तो गरुड़ को बताते हैं कि उस समय में, when he was there in Ayodhya, कलयुग was there, he did not recognize the Lord. Then he goes on and he says, I went to Ujjain. Right? This is the storyline. Then उसके बाद में बोलते हैं कि see, कलयुग के बारे में बहुत खराब चीजें हैं. There are so many things I've told about कलयुग which really appall, which really feel, repulse us. However, the best thing about Kalyug is, we had talked about it last time because we wanted to talk about only the positives. Kalyug mein, if I think bad about somebody, I do not get punished. But even one positive thought is rewarded. बहुत बड़ी चीज है. I can think 100 bad things about somebody, I'm not going to get punished. But even one good thought will be rewarded. Right? And Kalyug mein naam aadhar. We don't need anything. See, over here they are describing what is needed in Satyug, what is needed in Dwapar, what is needed in Treta, and what is needed in Kalyug. Kalyug mein sirf naam. Right? Satyug mein what is needed? Satyug mein people are mystical and they are very wise. ठीक है? Hence, सत्युग में मेडिटेशन. क्योंकि वो बैठ सकते हैं, तप में बैठ सकते हैं, हम नहीं बैठ पाते हैं. Yes, and many a times the thought that keeps coming is meditation होता है, किया नहीं जाता. You become meditative. You cannot force this mind to meditate. It's too powerful. We cannot control this mind. So, in Satyug, what is needed? Meditation. Tapasya. Right? But in Treta Yug क्या होता है? Because now the Rajas, Tamas and Sattva का मिश्रण कम होता है. So त्रेता में क्या चाहिए होता है? त्रेता में they talk about a lot of sacrifices. आपने देखा होगा,
when we talk, look at our scriptures, ऐसा नहीं है कि there were no sacrifices in our scriptures also. बहुत सारे animal sacrifice, human sacrifice, lots that were happening, but that was by permission and approval, and the power used to be such कि अगर you sacrifice somebody, चाहे animal हो, the person who is sacrificing would promise, with your permission, I am giving your ahuti, but I promise you will get a higher birth than you have right now, and if that does not happen, come in the next birth and you sacrifice me. जब sacrifices होते थे, यज्ञ होते थे, श्री अग्नि देव वगैरह खुद होके आके आहुति लेते थे. We have seen it, right? So those were that was the trend when they were all connected. So over here in Treta Yuga, sacrifice of various kinds were encouraged. द्वापर में क्या होता है? द्वापर में पूजा पाठ, all that seva of the Lord, seva, adoring the Lord's feet and all that, वो भी अभी हमसे नहीं हो पाता. Why? Because we do not know the right way of all the rituals also. हमारी सामग्री होती है ना. Do you think the ghee is शुद्ध? Do you think the आहुति में जो लकड़ी जा रही है वो शुद्ध है? जो हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आर वी वेरी श्योर ऑफ हाउ वी आर द प्रोनाउंसिएशन एंड द राइट उच्चारण? नो, इट्स ऑल लॉस्ट. इवन द पंडित दैट वी आर कॉलिंग, हाउ डू वी नो दैट ही इज द्विज है, ही इज सो एलिवेटेड, ही इज शुद्ध? डू वी नो माई इनकम इज शुद्ध? डू वी नो हमारी इनकम, कहते हैं ना, आप कैसे कमाते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट. If our income is not shuddh, whatever we buy from that income is not shuddh. Now we won't go into the definition of what is shuddh, what is not shuddh. But so त्रेता में फिर भी हो सकता है, पर कलयुग में ये भी संभव नहीं है. तो कलयुग में they have made it very simple. So the power of कलयुग is राम नाम जप. That is it. ना जप, ना तप, ना नियम, कुछ नहीं चाहिए. तुम बस प्रभु नाम लो. दैट इज इट. दैट इज द पावर. कलयुग में नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पार. राइट? सो एंड ऑल दिस प्रॉम्प्टेड बाय श्री राम. एंड एक और चीज जो दे आर टेलिंग इज वेरी क्लियरली इज कि एट एनी पॉइंट इन टाइम, इवन दो वी आर इन कलयुग, वी हैव रजस, तमस एंड सत्व. सत्व, रजस एंड तमस इन अस. वो डिफरेंट प्रोपोर्शंस में रहता है एंड वी कीप ऑसिलेटिंग. ऐसा नहीं है कि वी आर ऑलवेज राजसिक एंड वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट. ऐसा नहीं है कि वी आर ऑलवेज तामसिक, कि वी आर जेलस एंड वी वांट टू हर्ट समबडी. ऐसा नहीं है कि वी आर ऑलवेज सात्विक वेयर वी आर ऑलवेज पायस. नहीं, बट एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम्स, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड आवर कंपनी एंड आवर एफर्ट ऑल्सो प्रोबेबली एंड हिज ग्रेस, इट ऑसिलेट्स. कभी सत्व बढ़ जाता है, राइट, वेयर सात्विक भाव आते हैं, वेयर वी आर टोटली इमर्स. कभी रजस बढ़ जाता है, वेयर वी वांट टू होल्ड, वी वांट टू हैव, व्हेन वी वांट दिस, व्हेन वी वांट दैट. कभी तमस बढ़ जाता है, वेयर विदाउट नोइंग ऑल्सो व्हाई आर वी जेलस, व्हाई आर वी हेटिंग समबडी, व्हाई डोंट वी लाइक द प्रोग्रेस ऑफ समबडी. एंड दे आर सेइंग दिस ऑसिलेशन इज प्रॉम्प्टेड बाय द लॉर्ड्स डिल्यूसिव पावर. ठाकुर जी हैं, खेल रहे हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है. हम बोलते हैं ना, प्रभु माया हरो, कब तक तुम खेलते रहोगे. सो वी ऑसिलेट बिटवीन सत्व, रजस एंड तमस. एंड कलयुग में ऐसा नहीं है. कलयुग में बाय एफर्ट, इफ वी मूव फ्रॉम तमस टू रजस एंड रजस टू सत्व, जितने लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही तो सतयुग आएगा ना. इट इज नॉट गोइंग टू बी बेस्ड ऑन काल चक्र. इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द प्योरिटी ऑफ पीपल ऑन अर्थ. जैसे जैसे अपलिफ्ट होंगे, कहते हैं ना, नाउ डेज इन कलयुग अ लॉट ऑफ डिवाइन सोल्स आर गोइंग टू कम डाउन. कई बार हम हमारे बच्चों को देखते हैं या किसी और बच्चे को देखते हैं तो लगता है कि माय गॉड, दिस चाइल्ड मस्ट बी ओल्ड सोल. कुछ तो है इसमें जो शायद हम में नहीं है. मेनी अ टाइम्स यू डू नॉट नो व्हाट टू से आफ्टर अ 4-year-old आंसर्स. सो नाउ दे आर सेइंग अ लॉट ऑफ डिवाइन सोल्स आर गोइंग टू कम डाउन. नहीं तो सतयुग कैसे आएगा? एंड वी आर गोइंग टू अपलिफ्ट आवरसेल्व्स. होगा स्लो एंड स्टेडी, एंड इट इज हैपनिंग, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ कलयुग, बिकॉज द मार्च इज टुवर्ड्स सतयुग.
In the darkness also, the march is towards the ray of light. Divine souls are going to come. We'll have so many means. It's going to become so easy to uphold righteousness. That is the beauty of Kali Yuga. So he talks about Kali Yuga, Satyuga, Treta, Dwapar, devotion. So we have covered only that much today, right? The next topic that we'll cover next week is going to be based on Guru and knowledge. So the time is up. We are going to continue from verse number 105 when he reaches Ujjain and he meets his Guru. And the crux of next week's class is going to be knowledge is. We can mull over it during the week. Knowledge is. Knowledge is. And it's very beautiful. If we think about it, हम सब ज्ञानी हैं, हमें सब पता है, कोई भी अज्ञानी नहीं है. उस पे एक आवरण पड़ गया है. It has been covered by a veil. So, knowledge is. It was, it is, and it is always going to be there. And the next topic talks about this, Guru and knowledge. And it's mesmerizing to see how they flow in our scriptures. कि it's beyond us. अगर हम और थोड़ा धीरे जाए ना तो और कवर कर सकते हैं. Maybe next time we pick up Ramayana, it's going to take 4 years to complete. And next time we pick up, it's going to take 6. Next time we pick up, it's going to take 10. It's not the other way around. If you know a subject, it takes lesser time to revise it, right? But scriptures में, if you know a subject, it takes more time to revise it. जितना जानोगे उतना ज़्यादा समय लगेगा उसको वापस पढ़ने में. Because वो knowledge is going to come out when we become receptive. जितनी समझ है उतना ही तो बोल सकते हैं ना. So, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान.